नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे। बायो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़े थे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में कुछ हद तक हम लोग पढ़ लिए थे, स्पोरोफिल तक हमने कहा था पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने शायद वहीं तक पढ़ा भी होगा, ठीक ना। चलिए, तो उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं, एक बार फिर से उसको पढ़ दे रहे हैं। बाकी सारी चीजें हो ही चुकी हैं, बेसिक कंसेप्ट कुछ थे उसको भी हमने बता ही दिए हैं। For pteridophyte, the pteridophytes include horsetail and fur. Pteridophytes are used for medicinal purpose, thick and as a soil binders. They are also frequently grow as ornamentals. Evolutionary, they are first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp and shady places. Through सब में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। यहां तक हो चुका था सब, ठीक है। आगे चलते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, जबकि यहाँ पर हाउ टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, जैसा कि फिगर 3.3 में देख सकते हैं। बिल्कुल, these organ possess well differentiated vascular tissue. The leaf in pteridophytes are leaves की बात चल रही है, हमने यहां तक शायद करा दिया था। Leaves in pteridophytes are small microphylls as in Selaginella and large macrophylls as in fern. अब इसके बाद बता रहे हैं the sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. ठीक, स्पोरोफाइट क्या बियर करते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ लगी रहती है? एक लीफ लाइक अपेंडेजेस पर, जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, जैसे सिलेजिनेला और इक्विसिटम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इन लिखा होगा इनकॉन्स्पिकुअस, आगे स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट called prothallus. ठीक, these gametophyte require cool, damp and shady places to grow. Because of this specific restriction या restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of anthrozoid. The male gamete released from antheridia to mouth of archegonium. Fusion of male gamete with egg present in archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte, which is dominant phase of the pteridophytes. In majority of pteridophytes, all the spores are similar kind. Such plants are called homosporous. A genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kind of spore, macro and micro spores, are known as heterosporous. The megaspore and microspores germinate and gives rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of zygotes into young embryos take place within the female gametophytes. This is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. The pteridophytes are further classified into 4 classes. Silopsida यानी सिलोटम में आता है। सिलोप्सिडा क्लास का नाम है, उसका एग्जांपल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस बोलते हैं इसको, टेरिस और एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न। तो ये है पैराग्राफ इसका पूरा। तो हम लोग को तो उससे कोई मतलब ज्यादा रहता नहीं, तो बार बार केवल पढ़ने, पहले समझ ले फिर उसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बता रहे हैं कि जो इसका स्पोरोफाइट, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, छोटी पत्ती सीला बड़ी पत्ती फर्न, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, कह रहे हैं स्पोरोफाइट बियर करेगी स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट क्या बियर्स मतलब उस पर जन्म लेता, क्या किसको बनाती? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ लगी रहती है? सब्सटेंडेड बाई का मतलब लगी रहती हैं, इसका मतलब अर्थ यही हो जाता है, लगी रहती हैं।
यानी लगी रहती है कहाँ, लीफ लाइक अपेंडेजेस पर, जिसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। क्या कहते हैं इसको, स्पोरोफिल्स कहते हैं। जुकाम बहुत तेज हो रहा है। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स पर क्या लगी रहती है, स्पोरेंजिया लगी रहती है। और ये स्पोरेंजिया कुछ में, ये देखिए लिखा ना, इन सम केसेस, कुछ में क्या, ये कुछ में, जैसे कि ये कुछ कौन, सिलेजिनेला और इक्विसिटम में क्या करती हैं, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको बोला जाता है क्या, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। यानी स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल है क्या, एक पत्ती तो है, और ये पत्ती आपस में इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आज अरेंज हो जाए, और यहाँ पर इसके जो निचली सरफेस पे ये स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। जब आप फर्न देखेंगे, फर्न आसानी से आपके यहाँ नर्सरी वगैरह में मिल जाता है, या आसपास जब बरसात के दिनों में तो कहीं पर मिल जाता है, तो उसके नीचे छोटे छोटे ये पत्ती रहेगी जब, उसमें तो देखिए इस तरीके से लगा रहता है, ये इस तरीके से, ये फर्न वाला स्ट्रक्चर देखिए, उसके निचली सरफेस पे गोल गोल इस तरीके से लगा रहता है स्पोरेंजिया। राउंड राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक, तो वो स्पोरेंजिया क्या है, तो उसी में कह रहा है कि वो जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स पे लगे रहेंगे। ठीक, और स्पोरोफिल्स कुछ के केसेस में, जैसे सिलेजिनेला के केसेस में और इक्विसिटम के केसेस में। और आप इक्विसिटम का स्ट्रक्चर देखिए तो ऊपर की तरफ बनाया हुआ है स्ट्रोबिलस, लिखा है ना स्ट्रोबिलस, बिल्कुल। नोड और इंटरनोड भी पाया जाता है इसमें। नोड क्या होता है, जहां से लीफ निकलती है, और इंटरनोड दो नोड के बीच की दूरी। ठीक है ना, और ब्रांच भी देखा है, राइजोम भी बताया जा रहा है इसमें कि राइजोम होता है। देख लीजिएगा स्ट्रक्चर अच्छे से एकदम। और ये साल्विनिया, जिसको एक्वेटिक पॉन्ड भी एक्वेटिक होता है, वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। ठीक है ना, नहीं, एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, गलत है। ठीक है ना, चलिए, तो ये स्ट्रोबिलाई और कोन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। अब इसको याद कैसे करेंगे, यानी स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहां लगी रहती है, सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स कुछ में, जैसे कि सिलेजिनेला और इक्विसिटम में क्या बनाती हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन। सिलेजिनेला और इक्विसिटम में क्या बनाती हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिली पढ़िए, स्ट्रोबिलाई पढ़िए, क्या बात है, पढ़ेंगे तो वही ना, इतने को तो वही वाला ऑप्शन भी टिक कर देना का। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जब सीला कष्ट में होती है तो एक कोन ले लेती है और उसमें स्पोर फिल करती है। सीला मतलब सिलेजिनेला, कष्ट मतलब इक्विसिटम। ठीक है ना, अजय स्पोर कोन, यानी कोन किसमें पाया जाता है, सिलेजिनेला। और ये कोन बनता कैसे, स्पोरोफिल के अरेंजमेंट से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा नहीं लेने का अपने को, एकदम नहीं। यानी सिलेजिनेला और इक्विसिटम, जब सीला कष्ट में होती है, कष्ट का मतलब इक्विसिटम, सीला का मतलब सिलेजिनेला, कोन में यानी कोन पाया जाता है इनमें। और कोन बनता कैसे, स्पोरोफिल्स। आगे चलते हैं। अब ये स्पोरोफाइट हमने पहले ही बता रखा है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इनकी, यानी मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, स्पोरोफिटिक, पहले ही हो चुका। स्पोरोफिटिक का मतलब 2n होगा। ये बनाएंगे स्पोरेंजिया, उसी पे स्पोर पे लगा रहेगा, उसी स्पोरोफिल्स पे क्या लगे रहेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट पे स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया में होती है क्या, स्पोर मदर सेल्स। क्या होती है, स्पोर मदर सेल्स। ये सब देखिए यहां तक। अब स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस, टर्म आ गया मियोसिस। इसका मतलब मियोसिस होने के लिए ये 2n होना जरूरी था। तो यहां तक सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्पोर बन जाता है, स्पोर हो गया तो मियोसिस हो गई, तो स्पोर कैसा, एन, स्पोर कैसा, एन। और ये जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोथाइलस। और प्रोथाइलस इसका क्या है, टेरिडोफाइट का गैमेटोफिटिक स्टेज है। क्या है ये, गैमेटोफाइट है। यानी टेरिडोफाइटा की आपसे पूछा जाएगा, टेरिडोफाइटा की बताइए गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है, तो कहेंगे प्रोथाइलस है। पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर प्रोथाइलस। ठीक है ना, तो पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर प्रोथाइलस, और जी फॉर गैमेटोफाइट। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, पीपीजी है ना, पीपीजी, पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर प्रोथाइलस, जी फॉर गैमेटोफाइट, पीपीजी है ना, पीपीजी याद रखेंगे। पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर, देखिए यहां से पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर प्रोथाइलस, जी फॉर गैमेटोफाइट। यानी प्रोथाइलस, टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट क्या है, कहेंगे प्रोथाइलस है। क्या है, प्रोथाइलस है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सवाल क्या पूछा गया, अब ये सवाल ये सब पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाने का। अब आगे बता रहे, प्रोथाइलस इनकंस्पिकुअस होता है, यानी अस्पष्ट, यानी साफ साफ नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल होता है, और साथ ही साथ वो मल्टी सेलुलर होता है। इसका मतलब ये स्पोर जर्मिनेट करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं प्रोथाइलस। और प्रोथाइलस क्या है, मल्टी सेलुलर है।
फ्री लिविंग है। अब देखिए, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है, यानी टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है, ठीक। अब जबकि ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं था। इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट। अब मोस्टली ज्यादातर लोग फोटोसिंथेटिक थैलाइड होते हैं, फोटोसिंथेटिक थैलाइड। और ये जो प्रोथैलस होता है रिक्वायर, क्या रिक्वायर करता है, उसमें लिखा हुआ रिक्वायर कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस टू ग्रो, ग्रो करने के लिए कूल ठंडा, और उसके बाद ठंडा मतलब वहां ठंडा ही होगा, नम छायादार स्थान की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोथैलस बनेगा तो, लेकिन जमेगा यहां पर, तो इसे कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट, या रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्शन नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही? बिल्कुल, रेस्ट्रिक्टेड यानी बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ अभी आगे और बढ़ेंगे तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, क्या, फर्टिलाइजेशन के लिए। अभी जब प्रोथैलस डेवलप करेगा तो उसमें बनेगा मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या जनरेट करेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट होगा एंथेरोजाइट यानी स्पर्म, उसको पानी चाहिए आर्चिगोनियम तक पहुंचने के लिए, यानी क्या हो जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, किसकी, पानी की। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट, restricted requirement and need of water for fertilization, the spread of living pteridophyte। अच्छा, मरे हुए भी आते हैं क्या भैया, चल लिविंग शब्द लगाए हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं भैया, लिविंग ही रहेंगे, ठीक ना। टेरिडोफाइट्स, लिविंग टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और यानी कम होते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो, और एक संकीर्ण जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। एक संकीर्ण यानी कम भौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अब इसके आगे। अब प्रोथैलस क्या करने वाला है, कहेंगे प्रोथैलस क्या करने वाला है, तो भैया प्रोथैलस केवल टेरिडोफाइट में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेजिनेला और साल्विनिया में, टेरिडोफाइट के केस में सिलेजिनेला और साल्विनिया में ही केवल कोन होता है, स्टेबिलाइज होता है। जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां स्टेबिलस और कोन पाया जाएगा, लेकिन टेरिडोफाइट के केस में केवल सिलेजिनेला और इकोसिस्टम में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको रफ कर दे रहे हैं, आगे चलते हैं। अब ये क्या करेगा, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी 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 एकदम बहुत तेजी से। चलिए अब आगे क्या बता रहे हैं, जो गैमेटोफाइट बना था अभी, यानी प्रोथैलस, जो कि क्या फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक, मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस है, यानी बहुत छोटा है, दिखता नहीं हो जाता, ठीक है ना, वो प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट भी है। अब वो गैमेटोफाइट, अच्छा इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि प्लांट कैसा रहा होगा, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, जिसपे सब कुछ हो जा रहा है। अब इसको आप कल्पना कर पा रहे हैं कैसा रहा होगा, अभी बताते हैं, घबराइए मत, आप लोग घबराने बहुत जल्दी लगते हैं। ये प्रोथैलस क्या करेगा, बियर्स यानी उत्पन्न करेगा, जन्म देगा, किसको, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथेरिडिया, प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजोइड्स, ठीक, एंथेरोजोइड्स यानी मेल गैमीट जिसको बोलेंगे, जिसको स्पर्म भी बोलेंगे। ये मेल गैमीट और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या, आर्चिगोनिया। देखिए गोनिया और आ लगा यानी बहुवचन, प्लूरल नंबर है, सिंगुलर होता तो ईएम लगा रहता, आर्चिगोनियम, ठीक है ना, तो इसके टेंशन भी नहीं लेने को। यानी प्रोड्यूस एक कैसा होगा, सिंगल होगा, ठीक है। अभी जो एंथेरोजोइड यानी स्पर्म है, यानी मेल गैमीट है, ये वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज्ड एंड ट्रांसफर थ्रू वाटर एंड रीच टू माउथ ऑफ आर्चिगोनियम के पास पहुंच जाएगा। अब आर्चिगोनियम के पास पहुंच के क्या करेगा, इस एक को फर्टिलाइज करेगा, यानी एंथेरोजोइड को मिला के एक को फर्टिलाइज कर दिया, यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन। ये फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कहां हो रहा, इन आर्चिगोनियम में। कहां हो रहा, इन आर्चिगोनियम में। जबकि ब्रायोफाइटा में भी कहां हो रहा था, आर्चिगोनियम में। एल्गी में कुछ स्पीसीज में उगोनियम वाले में, आर्चिगोनियम में, और उसमें बाकी सब में उगैमस वाले स्पीसीज में उगोनियम में, नॉट आर्चिगोनियम, उगोनियम। देखिए आर्चिगोनियम शब्द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म यही तीनों में यूज किया जाएगा, ठीक है ना, और बाकी एंथेरोजोइड भी इसी तीनों में यूज किया जाएगा। एंथेरोजोइड को आगे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर नाम से जाना जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसी गैमीट को
और उनके स्ट्रक्चर को भी इसी तरीके से नाम से आएगा। परेशान मत होइए, सब छोड़िए, पहले हम लोग क्या है फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन की बात कर रहे हैं इन आर्चिगोनिया। अब ये फ्यूजन होगा तो क्या बनाएगा जाइगोट, जाइगोट प्रोड्यूस करके क्या बना लेगा मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, क्योंकि 2n हो गया, 2n हो गया तो ये 2n मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और यही तो क्या है डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज है। आगे बता रहे हैं, अब ये दो बातें हमें समझ में आई कि गैमेटोफाइट यानी प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इज इंडिपेंडेंट, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक, बट इट इज नॉट डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लेकिन ये डोमिनेंट फेज नहीं है, इनकी लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज नहीं है तो इंडिपेंडेंट लेकिन डोमिनेंट फेज नहीं है। और स्पोरोफाइट भी क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट है और फ्री लिविंग है, लेकिन ये क्या है डोमिनेंट फेज है। अंतर बस यही होता है, यानी स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी है ऑफ टेरिडोफाइट इज इंडिपेंडेंट, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड इट इज डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट क्या है, वो डोमिनेंट फेज नहीं है बट फ्री लिविंग है, डोमिनेंट फेज नहीं है लेकिन फ्री लिविंग है, ठीक है। गैमेटोफाइट ऑफ यानी प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग है ना, उसी को बोला जाए, मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक होंगे, बट इट इज नॉट डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, इनकी डोमिनेंट फेज ये नहीं। लेकिन अब अगर यहां पे बोला जाए कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज, तो क्या बोलेंगे आंसर ब्रायोफाइटा। भैया ब्रायोफाइटा में क्या होता था, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती थी उसकी, ब्रायोफाइटा की गैमेटोफिटिक होती थी। कैसी होती थी गैमेटोफिटिक। और स्पोरोफाइट थोड़ी देर के लिए आते थे, वो भी डिपेंडेंट होते थे उस पर। समझ में आई बात, तो यही है अंतर दोनों में, ठीक ना। चलिए अब हम आपको क्या बता रहे थे, ये कैसे समझेंगे इसको। मान लीजिए जैसे एक टेरिडोफाइट प्लांट है, आपने देख लिया यहां पर एक टेरिडोफाइट प्लांट बिल्कुल है, ठीक। फर्न का ले लीजिए, ये फर्न, इस पे क्या लगा रहेगा यहाँ नीचे, ये इस तरीके से पत्ती है, इसमें ये नीचे लगा रहेगा स्पोरेंजिया, क्या लगा रहेगा स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो क्या बनेगा स्पोर। अब यही स्पोर मान लीजिए यहाँ स्पोर बन गया, ये स्पोर जमीन पे गिरा, जिस क्या जरूरत पड़ेगी कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस, मिल गया, चलो भाई जम जाओ। अब ये क्या होगा जर्मिनेट करेंगे। अच्छा अभी जर्मिनेट, अभी स्पोर कैसे एन है, स्पोर कैसे एन है, ये क्या करेंगे अब जर्मिनेट करेंगे। यानी अब स्पोर देखिए लिखा था ना स्पोर, तो यहां तो अब यहाँ पे वो वाली बात है नहीं, स्पोर जर्मिनेट करके क्या होंगे पेड़ थोड़ी बनाएंगे, पहले की स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी ये स्पोर जैसे आप देखे होंगे सीड, जब चने को अंकुरित करते हैं तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आता है, बाद में पेड़ बनता है, तो उसी तरह से इसमें भी एक स्ट्रक्चर बनेगा थोड़ा सा, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा बस इतने दूर, ये नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखा स्मॉल स्ट्रक्चर, अस्पष्ट होगा, दिखेगा ही नहीं है वो चीज। अब ये बन गया, अब इसी पे धीरे से क्या बना लेंगे ये मेल गैमेटोफाइट, ये देखिए लिखा मेल सेक्स ऑर्गन, ये इसको बोलेंगे क्या प्रोथैलस। हार्ट शेप का होता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, और ये इस पर इधर की तरफ, और ये इधर इस तरह, खैर सब छोड़िए क्या मतलब उसका, हार्ट शेप का होता है, देखे ना इस तरीके से, ये ऊपर इधर की तरफ, इधर इधर इस तरह से लगे रहते हैं ये। अब इसी पे होगा ऑर्गन सेक्स ऑर्गन, अब यही क्या होगा पहले यहीं पे ये मेल वाला, अब मेल वाला क्या बना लेगा गैमीट, और ये फीमेल वाला। अब इनका खुद में थोड़ी, अगर खुद में हो जाए तब भी जरूरत पड़ती है वाटर की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन, वाटर की जरूरत पड़ेगी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन से पूरा ये देखिए यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर पे जाइगोट डेवलप कर रहा है, यानी नीचे वाला स्ट्रक्चर बना रह रहा है कुछ दिन तक, फिर जाइगोट डेवलप किया। अब जाइगोट धीरे धीरे ये जो जाइगोट है, अरे इतना ज्यादा वो हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, सिंपली समझिए आप, ये हार्ट शेप सू शेप छोड़िए, आप आसानी से जब समझ सकते हैं तो काहे लिए हम लोग पागल हो, ठीक ना। चलिए ये था स्पोर, ये जर्मिनेट किया और ये स्ट्रक्चर बनके तैयार, ठीक इस तरीके से ये तैयार। इसी पे होगा ये देखिए मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे प्रोथैलस। अब प्रोथैलस बताया मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेगा, तो एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारे स्पोर होंगे, एक इधर भी बना लीजिए, बना लिया, ठीक। इसका स्पोर पानी के थ्रू यहाँ आ गया, इसमें आ गया बिल्कुल आ गया। अब ये छोटी सी चीज है, अभी जमीन पर ही है एकदम, और भी कहाँ एकदम नम छायादार स्थान है, बिल्कुल चट्टानों फट्टानों में रहते हैं सब, और भी रेतीली मिट्टी में जहां भी मिल जाए वहां रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे ये इस तरीके से जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि ये क्या आ गया यहाँ पे एंथ्रोजॉयड, ये एंथ्रोजॉयड आया और इसके आर्चिगोनियम में फ्यूज कर दिया और यहाँ पर बन गया जाइगोट।
अब देखिए इसी पे जायगोट का डेवलपमेंट शुरू। तो जायगोट का डेवलपमेंट डायरेक्ट पेड़ थोड़ी बनाएगा, अभी उसमें धीरे 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 और संरचना बनेगी जायगोट से, फिर और डेवलपमेंट होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गन बनेंगे, फिर धीरे 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 एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, कई महीनों में पूरा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। यानी देखिए अब फिर ये क्या हो गया, अब जायगोट बन गया, तो यही जायगोट का यानी मल्टीसेलुलर का ये जो जायगोट है, जायगोट कुछ और कलर से बना दें? जी सर जी बिल्कुल बना दीजिए। बना दिया, ये लो, ये हो गया जायगोट। अब ये जायगोट धीरे धीरे डेवलप कर गया और ये पेड़ बन गया फिर से वापस। फिर समझ में आई बात, यही होता है। आपको लगा का कि मतलब क्या चीज है, यह है, तो टेंशन नहीं लेने की। तो ये सब अब प्रोथैलस, हार्ट शेप, ये सब वो सब खत्म होगी कहानी, चाहे तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बता रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। इस बात को अब यहां से नोट करिए, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, दैट इज ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। इसको नोट कर लिए जल्दी से, हो गया। चलिए इसी तरीके से ब्रायोफाइटा में होगा, तो उसका तो स्पोर जो बनता है, और मतलब स्पोर क्या हो, तो सीधे बनना माइटोसिस से बनेंगे, स्पोर डेवलपमेंट होगा, उस पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप उसी तरह से उसको भी समझ सकते हैं, पढ़ के समझिएगा, आ जाएगा, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे बना दीजिएगा, एक जगह आपको समझ में आ जाएगा एकदम। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ खोजने लगते हैं, कैसा वो सर्च कर लेंगे कुछ लोग कि डेवलपमेंट कैसा होता है, अरे एनसीईआरटी वाला खुद लिख रहे हैं ऐसे ना ऐसे होता है, ले जब होता है तो हो। चलो भाई आगे लिखिए, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, फट से लिखिए, मेजॉरिटी ऑफ कैसे होते भाई, होमोस्पोरस। बहुत ध्यान रखिए, यानी मेजॉरिटी का मतलब ज्यादातर, अधिकतम, अधिकतर, अधिकतम नहीं अधिकतर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, हाँ ठीक, होमोस्पोरस, हमें लगा हेटेरो, ठीक। यानी दैट इज ऑल स्पोर आर सेम काइंड, सिमिलर काइंड के होंगे, यानी ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड के होंगे, एक ही जैसे होंगे, ठीक। लेकिन कुछ में जैसे बट, फिर वही बट जेनरा, कौन सा आपकी बार, वही सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में छोटी पत्ती, सिलेजिनेला में स्टोबिलाई, सिलेजिनेला में नाटक बहुत तगड़ा, यानी कौन, वो रहा जेनरा सिलेजिनेला। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया हो, हाँ सिलेजिनेला और साल्विनिया लिखा है ना, साल्विया मत पढ़ दीजिएगा, साल्विनिया लिखा, साल्विया अलग हो जाएगा, वो एंजियोस्पर्म का स्मॉल वाल्फिया, हाँ ठीक है, एंजियोस्पर्म में आ जाएगा साल्विया, ठीक है ना, इसलिए वो लफड़ा नहीं लेने का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी टू काइंड्स ऑफ स्पोर होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। बात समझ में कुछ आ रही होगी कि ऐसे ही हवा में जा रहा भाई, हेटेरोस्पोरस यानी टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोड्यूस्ड टू काइंड ऑफ स्पोर। और इस टू काइंड ऑफ स्पोर का नाम क्या होगा, एक को बोलेंगे देखिए माइक्रोस्पोर, एक को मेगास्पोर, यानी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर और ये मेगास्पोर। ये स्ट्रक्चर है कैसे भैया, स्पोर ये एन वाले स्ट्रक्चर है, एन वाले नहीं, अभी पिछले पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर कैसे, एन वाले स्ट्रक्चर। एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोर, एक को बोलेंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का नाम इसमें लिखे हैं, स्मॉल होगा ये भैया स्मॉल होता है, और माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है, ठीक, ये लार्ज होता है, मेगा का मतलब ही बड़ा होता है। ये होता है क्या, मेल गैमेटोफाइट, इसको नाम देते हैं मेल गैमेटोफाइट, नॉट गैमीट। उसे गैमिट मतलब गैमिट बोल सकते हैं भाई, इसी को धड़ल्ले से वहां बोला जाएगा, है ना, पॉलन ग्रेन जब बन जाएगा तो एंजियोस्पर्म में, तो मेल गैमेटोफाइट। चलिए जो बोला गया वही बोले, अपने मन से कहे हम लोग 3-5 कहें, मेल गैमेटोफाइट, इसको फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, आगे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद करने की बात है, तो भैया फिर वही सीला, अब की होगी सहेली आ गई साल्वी, है, और उन दोनों में क्या है, 2 स्पोर है, तो सीला और साल्वी में 2 स्पोर होता है,
तो सीला में छोटी पत्ती, सीला कष्ट में थी तो स्पोर बनती थी भैया, ठीक है ना। और ये जो हेटेरोस्पोरी है ये सीड हैबिट है, ये सीड डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर है, ठीक है ना। दो काइंड ऑफ स्पोर अगर मिल गए तो सीड हैबिट की तरफ डेवलपमेंट है। ये एवोल्यूशनरी कहानी बहुत लंबी है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी सीला और साल्वी में दो स्पोर हैं, यानी दो तरह के स्पोर हैं, ठीक है ना। बस इतने याद रखिए, बहुत है, इतना में तो आप लोग माहिर हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या द फीमेल गैमेटोफाइट इज इन दिस प्लांट रिटेन्ड ऑन। अब देखिए जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इन दिस प्लांट, इन पौधों में, सिर्फ इनमें इन दिस प्लांट लिखिए, वही फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल 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 ऐसे लिख दीजिए, इन दिस प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड यानी उस पर बना रहता ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, यहां लिख दें। चलिए स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, अरे यानी कई सीजन तक पीरियड, कई समय तक, कुछ दिनों तक बना रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस, यानी इनका डेवलपमेंट कहां हो रहा है जाइगोट का, यंग एम्ब्रियो में। और वो कहां रहा है ये सब, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आर्चिगोनियम, हम लोग आर्चिगोनियम 4 बोल रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, आर्चिगोनियम 4 नहीं, आर्चिगोनियम, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। और उसी में सिंगल एग बनता है। जिसे मेल गैमेटोफाइट क्या था, एंथीरिडियम, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, आर्चिगोनियम। ये दो अलग अलग स्पोर के से हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बात समझा रही है। ये मेल गैमेटोफाइट था क्या, कहेंगे। चलिए जाने दीजिए, उसको मत लिखिए, आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तो आप लोग फटाफट उसी को टिक करने लगेंगे, मत करिए, आएगा ही नहीं। लफड़े लेने, मतलब समझ रहे हैं ना। ये मेल गैमेटोफाइट क्या था वहां पे, एंथीरिडियम, वहां आर्चिगोनियम। तो जाइगोट कहां डेवलप कर रहा था, आर्चिगोनियम में, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। भैया लिखना चाहो तो लिख दो, सब हमें लिख के दे दें, कुछ करना ना पड़े जीवन में, ठीक। आर्चिगोनियम। अब फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जाइगोट का डेवलपमेंट इन्हीं पौधों में, जो जाइगोट का डेवलपमेंट कहां हो रहा, अरे इनमें क्या, सब में हो रहा। तो इसको इस तरह से तो इनके लिए खास नहीं है कोई, सिर्फ सबके लिए बात चल रही है। भले ही हेटेरोस्पोरस हैं, ठीक है ना, लेकिन जाइगोट का डेवलपमेंट सब में ही आर्चिगोनियम में हो रहा। यानी जाइगोट, देखिए द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, पूरी बात जो लिखी है वो लिखिए, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक प्लेस within the female gametophyte, within the female gametophyte। बात समझ में आ गई, गैमेटोफाइट मतलब वही आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम एक संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में का नाम दिया जा रहा है बार बार, ठीक है ना। और ये क्या है, दिस इवेंट इज प्रिकर्सन, यानी अग्रगामी है, यानी ये एक आगे के संकेत हैं कि भैया अब सीड हैबिट आएगी, तो जिम्नोस्पर्म में सीड हैबिट आ गई। फिर दिस इज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, दिस इज द प्रिकर्सर, दिस इज, अच्छा, दिस इवेंट इज, जो लिखा है एनसीईआरटी ने बढ़ा दे, दिस इज या दिस इवेंट इज प्रिकर्सर, एक अग्रगामी, प्रिकर्सर मतलब अग्रगामी, यानी आने का संदेश है, ठीक है ना, प्रिकर्सर, हाँ यही लिखा भाई, अग्रगामी, अग्रगामी यानी आने वाला है ना। टू द सीड हैबिट, टू सीड हैबिट, यानी अब सीड बनने की बात आएगी।
ठीक। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये क्या है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण घटना है, क्रम है, एक महत्वपूर्ण क्रम है। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, और विकास में एक महत्वपूर्ण क्रम है ये। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको नोट कर लीजिए। सिलोप्सिडा, बात समझ में आ गई एकदम, एक एक लाइन, बिल्कुल क्लियर कट। हम लोग क्लियर कट वाले लोग हैं, ऐसे हम लोग नहीं चलते। एग्जांपल लिखिए, देखिए 4 क्लास हैं कुल, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, समझ रहे हैं, टेरोप्सिडा, बिल्कुल। सिलोप्सिडा मतलब सिलोटम, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट कर लिए, जल्दी से एकदम, क्योंकि ये चैप्टर आज खत्म होना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया आप समझ में आया कि कुछ और अभी बाकी है? क्लास लिखिए, क्लास। पहला है क्या, सिलोप्सिडा, बहुत सही। इसमें आता है सिलोटम, नाम से क्लियर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या आता है, सिलोटम, पहला तो ये हो गया। आगे बता रहा लाइकोप्सिडा, इसमें 2 लोग आते हैं, एक तो नाम लाइकोपोडियम, एक हो जाएगा सिलेजिनेला, ठीक। लाइकोप्सिडा, लाइकोसीडा पढ़िए या लाइकोप्सिडा, पी साइलेंट करके भी पढ़ा जाता है ना। और यहाँ पी साइलेंट, तो उसका जगह सिलोसीडा, यहाँ लाइकोसीडा, ठीक है ना। इस तरीके से भी तो अलग अलग पढ़ने वाले लोग हैं, अब चाहे जो भी हो, हमको किसी को दिक्कत नहीं है कौन क्या पढ़ रहा है, बस एनसीईआरटी पढ़े, सिलेक्शन ले, अपना घर जाए। दूसरा क्या, सिलेजिनेला, बहुत अच्छे भैया। ये स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, हैं थोड़ा सा, मान लीजिए लिखने में स्फेनोप्सिडा, यानी फेनोप्सिडा जिसको बोलते हैं, फेनोप्सिडा या फेनोसिडा, जो आप पढ़ें उचित लगे आपको। इसमें आता है इक्विसेटम, इक्विसेटम, और एक क्लास है क्या इनकी, टेरोप्सिडा, यानी टेरोसिडा जिसको पढ़ते हैं कुछ लोग। आएगा क्या, डायोटेरिस, ड्रायोटेरिस, और क्या आएगा, टेरिस, और एडियंटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलने वाला आदमी है ये, मतलब आदमी चलने वाला, वॉकिंग फॉर। अरे अच्छा, तेज हाथ चल रहा भाई साहब का, ठीक है, वॉकिंग फॉर। तो ये रही कहानी इसकी। अब कुछ नोट लिखिए, नोट, तो भैया ये याद रहेगा ना। तो देखिए सीला लाइकोपोडियम खाती है, इसको लिख लीजिए। और सिनोप्सिडा आपको याद ही रहेगा। और टेरिस पे क्या हो जाता है भाई, टेरिस, डायोप्सिडा मतलब देखिए टेरिस, टेरिस में कई टेरिस होंगे, एक टेरिस ये, एक टेरिस ये, एक ड्राई वाला टेरिस, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आदमी क्या करता है, टेरिस पे कपड़े सुखाता है, कहाँ जाता है, चल कर जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही हवा में याद रखिए, टेरिस पर आदमी चलकर कपड़े सुखाता है, ठीक है। टेरिस, ड्राई टेरिस, सब याद रहेगा ना, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीला लाइकोपोडियम खाती है, नोट लिखिए, नोट। देखिए अब आप अगर कहीं पर पढ़ेंगे अपनी उसी बुक में क्वेश्चन वाली, तो एक जगह शब्द आएगा क्रिप्टोगैम्स। क्या आएगा, क्रिप्टोगैम्स, है ना, सिर्फ क्रिप्टोगैम्स इतना। इसका मतलब होता है क्या, सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट, यानी फ्लावरलेस एंड सीडलेस, अरे फ्लावरलेस एंड सीडलेस, ये भी सीडलेस प्लांट, ये फ्लावरलेस एंड सीडलेस आएगा एक जगह पढ़ते हुए क्वेश्चन में। तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं भैया, जिनमें न सीड हो न फ्लावर हो, तो ऐसे कौन कौन से हैं, कहेंगे पहले थैलोफाइटा से स्टार्ट करिए। थैलोफाइटा यानी अलगी वाली बात हो गई, ब्रायोफाइटा वाली बात हो गई, है जो कि अभी हम लोग पीछे करके आ रहे हैं, और टेरिडोफाइटा वाली बात हो गई। 3 लोग तो इसी में आ जाते हैं। आइए स्पेशली क्या है, टेरिडोफाइटा को बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्यों, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता था। क्या पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यू, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ठीक।
बात समझ में आ गई। एक शब्द आपको मिलेगा फेनोरोगैम्स, इसका मतलब होता फ्लावर बियर, यानी जो फेनोरो मीन्स होता मैरिज वाले, असली मीनिंग तो वही था। तो यहाँ पे क्या, बियर सीड एंड फ्लावर, जो क्या करते हैं, बियर सीड एंड फ्लावर। तो इसमें कौन लोग आएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि इसी में सीड आता है। भाई सीड आना जरूरी है तो सीड इसमें भी आता है, लेकिन फ्लावर का आना जरूरी है, ये जिम्नोस्पर्म में जरूरी नहीं है ना, लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्लावर आएगा, एंजियोस्पर्म। तो जिस किसी प्लांट में नॉर्मली अगर आपको ज्यादातर जहां फ्लावर दिख जाए किसी पौधे में, चाहे वो जिस टाइप का हो, अगर आपको फ्लावर दिख जाए तो वो होता है एंजियोस्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो आप लोग पहचान ही लेंगे, और ब्रायोफाइटा का पौधा रख दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो जिम्नोस्पर्म पढ़ लें तो फिर बताते हैं कैसे पहचाना जाए। मतलब 3 पौधे रख दिए गए, एक है ब्रायोफाइटा का, एक है टेरिडोफाइटा का और एक है जिम्नोस्पर्म का, ठीक। और आपसे कहा जाए क्या ऐसा लक्षण देख के बता देंगे कि ई वाला जिम्नोस्पर्म का, ई वाला ब्रायोफाइटा का, वो वाला जो टेरिडोफाइटा का। कुछ होना चाहिए ना उसके लिए जुगाड़, वो जुगाड़ बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मेनली लीव्स पहले देखी जाती हैं, ठीक है ना। लीव्स अगर देखी जाती हैं तो चांस रहता है हमारा आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट कहाँ गई, अच्छा हमारे पास यही है, वेरी गुड, ला रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, भैया आ गए क्वेश्चन पे। टेरिडोफाइट कह रहे हैं स्ट्रोबिलाई कौन सा आर फाउंड इन, ले भैया हमने बताया था स्ट्रोबिलाई, टेरिडोफाइटा के अंदर स्ट्रोबिलाई केवल और केवल 2 लोगों में होती है ना। कौन भरती थी, कौन कस्ट में होती थी, कौन सेलेजिनेला, कस्ट का मतलब इक्विसिटम, तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्विसिटम। कह रहे हैं इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट रिक्वायर, भैया मेल गैमिट के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में दोनों में क्या जरूरत पड़ती थी, वाटर की। आगे बता रहे सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कि इसमें तीनों मासेस, फर्न और फंजाई दे रखे हैं, तो अच्छा फंजाई भी दे रखे हैं, तो फंजाई में भी अंदर ही होता था, लिख लीजिएगा नोट, फंजाई में भी अगर वहां पे सेक्सुअल वाली बात होगी तो उसके अंदर ही होता था। बेसिडियम स्ट्रक्चर नहीं बनता था, आप अरे पढ़े होंगे, बेसिडियो कार्प बन जाता था वो बाद में, है ना, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प, बेसिडियम, ये सब, इसको कार्प, एसआई, भूल गए का, भूलिए मत, मार मुर देंगे का फायदा। द प्लांट बॉडी इज थैलाइड इन, थैलाइड प्लांट बॉडी किसकी होती है भैया, देखिए मार्केंसिया की बॉडी ब्रायोफाइटा में लिखा गया था, है ना, प्लांट बॉडी किसकी होती है, मार्केंसिया की, क्योंकि इसमें स्फेगनम आंसर है, स्फेगनम इरेक्ट प्रोस्टेट वाली बात हो गई थी, साल्विनिया हो नहीं सकता, फ्यूनेरिया हो नहीं सकता, मार्केंसिया। कह रहे कंपेयर्ड विद गैमेटोफाइटा ब्रायोफाइटा, द गैमेटोफाइटा वेस्कुलर प्लांट, यानी वेस्कुलर प्लांट का मतलब यानी जिसमें ये वाले हैं, बहुत सही। तो ब्रायोफाइटा के जो गैमेटोफाइट क्या होता है, लार्ज होता है बट हैव स्मॉल सेक्स ऑर्गन, वेरी गुड, यही आंसर हो जाएगा। आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, भैया आर्चिगोनियोफोर नाम कहाँ है था, मार्केंसिया में, सुंदर फूल वाला, यानी फूल लाइक संरचना बनी थी, सुंदर फूल, फीमेल वाला, फीमेल थैलस, आर्चिगोनियोफोर, एकदम खपड़ा जैसा था, बेकार एकदम बदसूरत, वो कहा था मेल वाला, है ना, एंथ्रिडियोफोर नाम था। कह रहा सेलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू बी रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, बिकॉज क्यों, क्योंकि भैया इसमें 2 तरह के स्पोर बन गए थे, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट था, पढ़ दें ऑप्शन पहले, पहला ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्ट लाइक सीड, फीमेल गैमेटोफाइट लाइक आर्चिगोनिया। अच्छा, मेगास्पोर प्रोसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड, गलत हो जाएगा, सब तो कोई मतलब नहीं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ वही एम्ब्रियो, इन्हीं पौधों की बात चल रही थी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता भैया, पेरेंट स्पोरोफाइट में, एकदम सेम आंसर वही लिखा है, कह रहा है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ऑप्शन नहीं टिक करना है किताब में, याद रखना किताब खराब हो जाएगी, क्योंकि दोबारा जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके निगाह आंसर पे जाएगी, आंसर हम नहीं टिक करते, अरे पागल है का, किताब खराब हो जाएगी भाई, एक को आंसर नहीं टिक करें, काहे टिक करें भाई, नहीं समझ में आ रही बात, एक को आंसर टिक को नहीं करना है, आपको क्वेश्चन जो हो गया उसको टिक करना, जो नहीं है गोला बना लिया, ठीक है ना,
हाँ, किताब पूरी खराब हो जाएगी और जीवन खराब हो जाएगा पूरा। भैया जब दोबारा आप लगाएंगे इसको, ऐसे देखें हम टिक कर लेते थे, क्या बता पाते? कुछ नहीं। इस तरह से दिमाग तो चल रहा, सारे ऑप्शन तो पढ़ ले रहे हैं, आपको तो वहां पहले ही समझ में आएगा कि ये वाला ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है पता नहीं। तो ऐसा मत करिए, सोचने समझने की शक्ति बनी रहेगी। अगर ऑप्शन टिक नहीं रहेगा तब न फिजिक्स में करिएगा, न केमिस्ट्री में, न बायो में, पूरा जीवन खराब हो जाता है उससे। आगे बता रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? हेट्रोस्पोरी, उसी को नाम लिख दीजिए। जहां पे दो टाइप का स्पोर था उसको बोलते थे हेट्रोस्पोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? भैया क्या था? साल्विनिया और सिलेजिनेला, साल्विनिया और सिलेजिनेला। आगे बता रहे हैं, इन द प्रोथैलस ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स यानी टेरिडोफाइट की, द एंथ्रोजाइट्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एज अ रिजल्ट। वेरी गुड। ये क्वेश्चन का अपने मतलब का नहीं है, 2007 का है, तो 2008 तक हम लोग लगाते हैं। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे कह रहे हैं प्रोथैलस ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, द एंथ्रोजाइट्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड, यानी इनके सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा इसमें। सीधी सी बात। आंसर देख लेते हैं यार, है यहीं का है। अरे जब किताब लिए धरे हैं तो आंसर सही है ना। और बाकी कोई क्वेश्चन आपके मतलब का, वॉकिंग फॉर एडियंटम होता, ठीक। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम बायोफाइट, वही टेरिडोफाइट में क्या होगा? वैस्कुलर टिश्यू होगा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते थे? ब्रायोफाइटा को बोलते थे। और कोई मतलब का सवाल नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। तो खूब मेहनत से पढ़िए, एक एक लाइन अच्छे अच्छे से समझ के, एक एक अर्थ को, ठीक। और ये फिगर देख लीजिए, फर्न का ये साल्मोनिया है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता था लेग्यूल, छोड़िए जाने दीजिए उसको। सिलेजिनेला को लिख लीजिए स्पाइक मास या लिटिल क्लब मास बोलते। लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ये सब कहाँ पूछा ही नहीं गया। अरे जब से एनसीईआरटी वाले, ये किताब वाले, जब से सीबीएसई पैदा हुई और अब तक एक को फालतू सवाल जब नहीं पूछी तो हम लोग आप काहे पढ़े, है ना। इसलिए टेंशन, या तो पुरानी एनसीईआरटी खूब पहले जमाने में चलती थी, या तो उससे क्वेश्चन आते थे, या तो ये जो आई है 2007 के बाद, ये जो उसी में रिफॉर्म, या तो इससे आते हैं। तो इसलिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म पे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेगा जिम्नोस्पर्म। खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक। धन्यवाद।